باہر سے اپنی آنکھوں پر روشنی پڑتے ہی اسے بھیانک خطرے کا ادراک ہو گیا اور وہ نہایت تیزی سے نیچے بیٹھ کر یا ایک طرف سرک کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ چاؤفان نے کھڑکی کھلنے کے کھٹکے کی ہلکی مگر واضح آواز نہ سنی ہو۔ وہ ہمدن دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ آوازیں اس کی توجہ مبذول کرانے کے دانستہ پیدا کی گئی تھیں۔ وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ سوبراج ریسٹ ہاؤس کی ایک کھڑکی میں بس لمحہ بھر کے لیے نمودار ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ سوبراج پر اچھڑتی ہوئی نگاہ پڑتے ہی میرا دوران خون تیز ہوا، لیکن پھر اعتدال پر آ گیا۔ وہ فوری طور پر میرا شکار ہونے سے بچ گیا تھا، مگر مجھے یہ اطمینان تھا کہ وہ ریسٹ ہاؤس میں محصور تھا۔ اس عمارت کے گرد چاؤفان کے 4 مسلح اور خونخوار جنگجو پھیلے ہوئے تھے۔ دروازے پر چاؤفان مستعد کھڑا ہوا تھا اور میں اندھیرے میں گھات لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس اثنا میں چاؤفان نے مضطرب ہو کر دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ خلاف توقع یکا یک دروازہ کھل گیا۔ دراز قامت اور صحت مند سوبراج کے بجائے ایک متوسط قامت مقامی کھڑا ہوا نظر آیا جو خوشمگین نظروں سے چاؤفان کو گھورا تھا۔ چھاڑیوں کی اوٹ میسر ہونے کی وجہ سے میں ان دونوں کی نگاہوں سے اوچھل تھا۔ وہ روشنی میں ہونے کے سبب مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ نئے آدمی نے تلخ اور اونچا لہجے میں چاؤفان سے کچھ کہا۔ اس کی آواز سے بھی نیند کا خمار چلک رہا تھا۔ اپنے صاف ستھرے کپڑوں اور انداز سے وہ ریسٹ ہاؤس کا دربان ہرگز نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوکیدار ہوتا تو وہ اندر محو خواب ہونے کے بجائے مستعد سے باہر بیٹھا ہوا ہوتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ سوبراج کو لانے والی سفید لینڈ کروزر کا ڈرائیور ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا بایاں ہاتھ پاجامے کی جیب میں ڈالے اندر سے نمودار ہوا تھا۔ اس کے تیور خطرناک تھے۔ اگر وہ راجن کا آدمی تھا تو پاجامے کی جیب میں چھپے ہوئے اس کے ہاتھ میں کسی پستول یا ریوالور کا ہونا ناگزیر تھا۔ ایک بدماش سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ رات گئے دستک دینے والے ایک ملاقاتی کا خالی ہاتھ سامنا کرنے کا خطرہ مول لے گا۔ چاؤفان نے اپنی ہلکی رائفل کو ایک پہلو پر بازو کے نیچے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ شاید کسی عام آدمی کے لیے وہ پوشیدہ رہتی، لیکن اس کے مد مقابل کی عقابی نظروں سے اس کا بچنا محال تھا۔ وہ دونوں مسلح حالت میں ایک دوسرے کے روبرو تھے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ کسی نے منہ نہیں موڑا تھا۔ چاؤفان نے بھی اونچی اور تیز آواز میں جواب دیا۔ ان دونوں کے درمیان مقامی زبان میں ہونے والے مکالمے میرے لیے یکسر ناقابل فہم تھے، لیکن ان کے لب و لہجے سے تلخی اور ترشی کا اظہار ہو رہا تھا جو میرے لیے خاصا تشویشناک تھا۔ چاؤفان کو اپنی خودکار رائفل شانے سے اتار کر سیدھی کرنے میں دیر لگتی، جبکہ اس کا حریف پاجامے کی جیب سے ہاتھ نکالتے اس پر گولی چلا سکتا تھا۔ میرے لیے اپنی جگہ سے چاؤفان کو بچا کر نووارد کو نشانہ بنانا محال تھا، کیونکہ چاؤفان بے تابی کے عالم میں بار بار قدم بدل رہا تھا، جس کے سبب اس کے بدن کے زاویے لمحہ بہ لمحہ بدل رہے تھے۔ چاؤفان کا جواب سن کر اندر سے نمودار ہونے والے نے چیخ کر مختصر سی کوئی بات کہی۔ یقیناً وہ کوئی گالی رہی ہوگی، کیونکہ چاؤفان نے حیرت ناک تیزی کے ساتھ اپنی رائفل کندھے سے اتار کر اس پر سیدھی کر لی تھی۔ حریف کو اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ جیب سے ہاتھ نکال کر گولی چلاتا۔ موت کو اتنے قریب پا کر نووارد وحشت زدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ چاؤفان ٹریگر دبا کر گولیوں کے باڑ اس کے سینے میں اتارتا، وہ سر جھکا کر چاؤفان پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ لمحات عمل اور رد عمل کے تھے۔ دونوں کے پاس سوچنے سمجھنے کی مہلت نہیں رہی تھی۔ چاؤفان نے اپنے سینے پر زوردار ٹکر پڑنے سے قبل اپنے حریف کا سر بازو میں دبوچ لیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرشور آواز میں پختہ فرش پر گر گئی۔ میرے لیے وہ چاؤفان کی جنگجویانہ صلاحیتوں کا پہلا مظاہرہ تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو اپنے حریف کی گردن پر یوں بل دیا کہ گرتے گرتے اسے اپنے نیچے دبوچ لیا۔ پھر نہ جانے کس طرح اس کا ریوالور چاؤفان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ریوالور سمیت اس کا دائنا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ ہاتھ نیچے آنے پر فضا اس کے حریف کی دلدوز چیخ سے لرز اٹھی۔ چاؤفان نے شاید اس کی کھوپڑی چٹکا دی تھی۔ ان دونوں کے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوتے ہی میرے لیے اپنی جگہ بیٹھ کر تماشا دیکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ میں اپنی رائفل لے کر پنجوں کے بل ان دونوں کی طرف توڑ پڑا تھا۔ کھوپڑی پر چوٹ کھاتے ہی نووارد تھائی اپنے وجود کی پوری قوت سے تڑپ کر چاؤفان کے نیچے سے نکل گیا۔ وہ بھاگنے کے ارادے سے لڑکھڑاتا ہوا فرش سے اٹھا تو اس کا چہرہ سر کے زخم سے بہنے والے تازہ خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ چاؤفان بھی اپنی رائفل لیتا وہ اٹھ رہا تھا۔ میں دوڑتے دوڑتے لمحہ بھر کے لیے ٹٹکا اور پھر میں نے نشانہ لے کر ایک گولی حریف کی پشت میں اتار دی۔ وہ ہولناک چیخ کے ساتھ لہراتا ہوا برآمدے کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ چاؤفان اپنی لڑائی میں اتنا منہمک تھا کہ وقتی طور پر شاید مجھے بھول گیا تھا۔ میرے کیے ہوئے فائر کی آواز پر اس نے مڑ کر تحیر زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بے ساختہ چیخ اٹھا، ماسٹر تم پکے نشانے باز ہو۔ اسی وقت فضا رائفلوں کے ہولناک نغموں سے گنگنا اٹھی۔ میں نے تیزی سے چاؤفان کی طرف بڑھتے ہوئے ان آوازوں پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ فائرنگ ریسٹ ہاؤس کی پشت پر واقع کھیتوں وغیرہ کی سمت میں ہو رہی تھی۔ چند ثانیوں میں چاؤفان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ مرنے والے کے بے حس و حرکت جسم پر یوں رائفل تانے کھڑا تھا جیسے اس کے ہلتے ہی اسے چھلنی کر دیکھا۔ یہ مر چکا ہے،
मैंने उसके करीब पहुंचकर दबी दबी पुरजोश आवाज में कहा। गोली उसके दिल को चीरती हुई पार निकल गई होगी। वो सीधा हो गया और मेरी आंखों में आंखें डालकर धीमे और पुरतशवीश आवाज में बोला, मास्टर ये तो मर गया, मगर मेरे आदमी क्यों गोलियां चला रहे हैं? ये आवाजें मेरे कानों के लिए नई नहीं है। पीछे कोई गड़बड़ हुई है। तुम्हारे पास वाकी टाकी है? मैंने उसके शानों को दुबोच कर कहा, पता करो कि क्या हुआ है। ओह, उसने यूं बुखलाकर वाकी टाकी निकाला जैसे उसे भूला हुआ हो। पिछली तरफ से कोई साया निकलकर तारीख खेतों में घुसा है। अपनी जुबान में किसी से रब्ता करने के बाद उसने मुझे आगाह किया। वो खेतों में घुस गया और तुम्हारे आदमी छक मारते रह गए। मैंने तुर्ची से कहा। खतरनाक सूरत अहवाल के बावजूद मुझे उस पर यका गुस्सा आ गया। मास्टर वो बलबला रहे हैं। उसे मार सकते थे लेकिन नहीं मार सके। हवाई फायरिंग पर गुजारा करते रह गए। उसने मुसमुसी सूरत बनाकर बेचारगी से जवाब दिया, तुम्हारे आदमी अजीब उल्लू के चरखे हैं। मार सकते थे तो मारा क्यों नहीं? मैं चिल्ला गया। तुम्हारी तरफ से मैंने हुक्म दिया था कि जब तक मैं ना कहूं वो बराह रास्त किसी पर फायर नहीं करेंगे। जरूरत हो तो हवाई फायरिंग करें। उसने संभल कर वजाहत की। अब वो हवा में गोलियां चलाकर इसे खेतों में तलाश करते फिर रहे। इसका जवाब सुनते मेरा गुस्सा साबन के झाग की तरह बैठ गया। मुझे याद आ गया कि मैंने चाउफान को वह हदायत इस कच्चे के पेश नजर दी थी कि कहीं हम खुद अपने आदमियों की गोलियों का निशाना न बन जाएं। अब हम इसके पीछे जाएंगे। चंद सानियों की तजब्जुब के बाद मैंने कहा, इन्हें ताकीद कर दो कि इसी तरह इसे तलाश करते रहें। किसी को ताक कर निशाना बनाने की जरूरत नहीं। मुकद्दर से वो नजर आ गया तो हम खुद उससे निमट लेंगे। ये कहकर मैं राइफल ताने अंदर घुस गया। कोई कुशादा लाबी थी जहां मध्यम रोशनी वाला एक सब्ज बल्ब चल रहा था। इस लाबी में नजर आने वाले दरवाजों में सिर्फ कोने का एक दरवाजा खुला हुआ था। इसके पीछे गहरी तारीकी का राज था। वो वही सम थी जिधर की खिड़की में मुझे सोबराज की एक झलक नजर आई थी। मुझे उम्मीद थी कि वहां कुछ भी बाकी नहीं रहा होगा। चाउफान मेरे पीछे आ रहा था। उसने मुख्तसर सी गुफ्तगू में मेरी पुरानी हदायत का आदा गालबन अपने आदमियों तक पहुंचा दिया। मुझे तारीख कमरे में दाखिल होते देखकर उसने अपनी सर्च लाइट रोशन कर दी। वो सोने का कमरा था। चिकन आलूद बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। फर्शी कालीन पर पड़े हुए गद्दे की चादर से जाहिर हो रहा था कि कोई इस पर सोता रहा था। वो बिस्तर ड्राइवर ही का हो सकता था जो बरामदे में अपनी नींद सोया हुआ था। इस खाली कमरे से मायूस होकर हम दोनों रेस्ट हाउस के अकबी बरामदे में निकल आए। इस इमारत की साख्त कदीम वजह की थी। अंग्रेजी के हर्फ यू की सूरत में 3 अतराफ में मुतअद्दिद कमरे बने हुए थे। इनके आगे बहुत कुशादा बरामदा था जिसमें मेहमानों के सस्ताने के लिए मेजें और कुर्सियां पड़ी हुई थी। इसके बाद मुख्तसर सा खुला सेहन था जिसके इख्तिताम पर पिछली दीवार में बना हुआ दरवाजा खुला हुआ था। बज़ाहिर पूरी इमारत में किसी मुतनफ़्फ़िस की मौजूदगी के आसार नहीं थे। रेस्ट हाउस के निगरान या चौकीदार को ड्यूटी के इख्तिताम पर इत्मीनान से रुखसत कर दिया गया था। पूरी इमारत बिला शिरकत गैर सोबराज और उसके ड्राइवर के तसर्रुफ में थी। बाहर होने वाली धुआंधार फायरिंग का जोर इब्तदाई लम्हात ही में टूट चुका था। चाउफान के आदमियों को इतनी अकल थी कि वो अपने मैगजीन के बेमसरफ इस्तेमाल से गुरेज कर रहे थे। इन्हें मालूम था कि हवा में चलाई जाने वाली गोलियां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। खेतों में घुसने वाले दुश्मन को हरासा करने के लिए इक्का दुक्का फायर भी काफी थे। अब मेरे साथ साथ रहना, बिछड़ गए तो हम कयामत ही में मिल सकेंगे। मैंने रेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे से खेतों की तरफ निकलते हुए कहा, मास्टर तुम्हारा मूड बिला वजह खराब हो रहा है। मेरे आदमियों का क्या कसूर है? वो वही कर रहे हैं जो इन्हें बताया गया है। चाउफान ने दबे अल्फाज में एहतजाज किया, तुम्हारे आदमी बहुत काबिल और बहादुर हैं। मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है। मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा मूड ठीक है। मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा था। मैं इन खेतों में भटक गया तो दोबारा इधर लौटना मुश्किल हो जाएगा। तुम फायरिंग की आवाजें सुन रहे हो? उसे सूदी खुशबू वाले कद आदम से ज्यादा ऊंचे लहलाते खेतों में घुसते हुए पूछा। ये आवाजें पदाइशी बहरे भी सुन सकते हैं। पता नहीं तुम मेरी हर बात का उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? वो उलझ कर बोला, राजन के मेहमान को मैंने नहीं भगाया। यह हमारी बल्कि डान की साख का मामला है। वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया है। हमने उसे दोबारा न पकड़ा तो हम सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहेंगे। मास्टर मैं तुम्हारी तरह हिसास नहीं हूँ। वो खेतों के दरमियान छोड़े हुए तंग रास्ते से शाख हटाते हुए बुड़बुड़ाया, बदमाशी में कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी की रातें। वो आज हमारे चुंगल से निकल गया है तो कल जरूर फंसेगा। अब छोटा राजन से पहले मैं उसके मेहमान को जहन्नुम का ईंधन बनाऊंगा। अभी तुम फायरिंग के बारे में क्या कह रहे थे? मैंने उसे याद दिलाया। मुझे क्या बताता कि सोबराज मुझे इस तरह कई बार जिक्र चुका था। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे आदमी जोश में काफी दूर निकल गए हैं। मैंने चौंक कर उसकी बात काटते हुए पूछा, क्या इन चारों ने रेस्ट हाउस और गाड़ियों को लावारिस छोड़ दिया है? 2 उसकी तलाश में गए हैं, बकिया दोनों अपनी पोजीशनों पर हैं। मुझे डर है कि कहीं वो जंगल में ना घुस जाएं। क्या यहाँ जंगल भी है? मैंने अपने चेहरे से टकराने वाली नर्म शाखें हटाते हुए पूछा। मास्टर खेत ज्यादा बड़े रकबे पर नहीं है। थोड़ी देर बाद हम भी जंगल के सिरे पर होंगे। इधर भेड़िए वगैरह कसरत से पाए जाते हैं। रात को जंगल में घुसना खतरे से खाली नहीं है। क्या ये बात तुम्हारे आदमी नहीं जानते? पता नहीं, उसने फिक्रमंदी से जवाब दिया।
बुरा वक्त आ जाए तो आदमी जानी बूझी बातें भी भूल जाता है। तुम सीधे जा रहे हो, मेरा ख्याल है कि हमें दाएं बाएं भी देखना चाहिए। खेतों के बीच में लगे हुए दरख्तों की देखभाल जरूरी है। हो सकता है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ हो या किसी दरख्त पर चढ़ गया हो। ये तुम्हारा देखा वाला इलाका है, तो मेरी रहनुमाई करो, मैं यहाँ अजनबी हूँ। अपने आदमियों को जंगल में घुसने से रोको, हम इनके इंतजार में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, वो पुरख्याल आवाज में बोला। कुछ देर बाद तेजी से उजाला फैलना शुरू हो जाएगा, हमें दिन निकलने से पहले लौट जाना चाहिए। वो पगडंडी पर चलते चलते रुक गया। उसने वाकी टाके पर एक मरतबा फिर अपने आदमियों से बात की। मैं महसूस कर रहा था कि वो चारों वाकी टाके सिरे से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो लड़ने भिड़ने वाले लोग थे। मुनज़्ज़म होकर मजबूत कार्रवाई करना इनके बस से बाहर था। फायरिंग का सिलसिला थम गया। चौफान मुझे अपने पीछे आने की हदायत करके पगडंडी से उतरा और खेत में घुस गया। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो किस चीज़ की फसल थी। अहम तरीन बात यह थी कि सब पौधे नीचे से ऊपर तक इतने नरम और लचकीले थे कि इन्हें कुचल कर आगे बढ़ना दुश्वार नहीं था। नीचे जमीन नरम और दलदली नहीं थी। शायद फसल तैयारी के करीब थी, इसलिए खेतों की आबियारी का सिलसिला मौकूफ हो चुका था। हम बहुत देर तक खेतों में भटकते रहे। कई घने दरख्तों को देख डाला, लेकिन किसी का सुराग नहीं मिला। चौफान जंगल के भेड़ियों का जिक्र कर चुका था। उसने उधर से खेतों में घुसकर फसलें खराब करने वाले जंगली सुवरों का तज़किरा करके मुझे मजीद फिक्रमंद कर दिया। जरा सी सरसराहट पर मैं भड़कने लगा तो उसने मुझे इत्मीनान दिलाया कि खेतों में आने वाले बड़े जानवर अमूमन खामोशी से नहीं आते। वो सरसराहटें नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ने वाले चूहों की भाग दौड़ से पैदा हो रही थी, जो पौधों की जड़ों में बिल बना कर रहते हैं। ज्यादा पानी देने वाली फसलों में चूहे नापैद हो जाते हैं। नम और खुश खेतों में इनकी बन आती है। कई मिनट के लंबे वक्फों से एक आधा हवाई फायर हो रहा था। दूर की वो आवाजें रफ्ता रफ्ता करीब आ गई थी। हमने आपस में बातें करने का सिलसिला भी मौकूफ कर दिया। गहरे सन्नाटे में हमारी आवाजें करीब छुपे हुए दुश्मन को होशियार कर सकती थी। खेतों में खासा वक्त बर्बाद करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी वो कोशिश बेसूद थी। फसल की ऊंचाई 8 फुट के लगभग थी और वहां भटकते हुए हम सिर से पैर तक तारीकी और सब्जे में डूबे हुए थे। पेशकदमी करते हुए समत का कोई अंदाजा हो रहा था, न गिरदो पेश से बाखबर होने की कोई सूरत थी। हम चंद कदम चलते और सुन बुन लेने के बाद रुक जाते। इस वक्त बसारत बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। हर तरफ यकसा घूर अंधेरा और सब्जा फैला हुआ था। तिरछटी हिस्सा हमारी कुछ रहनुमाई कर रही थी। मैंने दिल में सोबराज को कोसा। वो जान बचाने के लिए रेस्ट हाउस से खेतों में घुसा था। इसके सामने समत की कोई अहमियत थी न रास्ते की। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कोशां था। मैं इसकी अंधी तकलीद में इसी राह पर चल पड़ा था। लानत भेजो इस मुहिम पर और इन खेतों से निकलने की कोशिश करो। मैंने चुंचलाकर ऊंची आवाज में चाउफान से कहा, मास्टर क्या हुआ, तुम ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हो? अंधेरे में उसकी तहायुर ज़्यादा सरगोशी ससराई। दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। सब्जे में घुसकर हमारी अकलें घास चर गई हैं। सुना है कि रात को दरख्त और पौधे ऑक्सीजन जज्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। सूरज की रोशनी में ये अमल उलट कर सेहत अफजा हो जाता है। उसने दरमियान ही में मेरी तायद की। हम तेजी से ऑक्सीजन के कहत का शिकार हो रहे हैं। मैंने अपनी हमाकत का एतराफ़ करने के बजाय संजीदगी से कहा, मेरा दम घुट रहा है, बाहर न सही किसी दरख्त की तरफ निकलो। इसके साए में ये ऊंचे पौधे नहीं होंगे, किस्मत ही इधर ले जा सकती है। चौफान की पुरमुर्दा आवाज सुनाई थी। मुझे तो यहाँ कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। बुद्धा के तवक्कल पर चल रहा हूँ। अपने आदमियों से बात करो, वो हम तक पहुँचने की कोशिश करें। मास्टर एक ही बात है, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। हम इन तक पहुँच सकते हैं, न वो हमको तलाश कर सकते हैं। हमने पगडंडियाँ छोड़कर बड़ी गलती की है। ये गलती की है तो अब इसे तुम ही भुगतोगे। मौका मिलते ही मैंने इस सूरत हाल का सारा बोझ बार उस पर डाल दिया। मास्टर मुझे इल्ज़ाम ना दो, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। वैसे तुम फिक्र ना करो, खेतों के कतात ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 10-15 मिनट तक हम एक ही समत में बढ़ते रहे तो कोई ना कोई पगडंडी वगैरह मिल जाएगी। मैंने वैसे ज़्यादा होकर अपने सर पर फैले हुए पौधों और पत्तों को दोनों हाथों से बेतबाना अंदाज में समेटा तो ऊपर लोब बोरी का तारों भरा स्याह आसमान फैला हुआ था। इर्द गिर्द पौधे ही पौधे थे जो रात की घूर तारीकी में सब्ज के बजाय स्याह नजर आ रहे थे। तूफान फौरी तौर पर राजन के मेहमान को भूल कर सीधा हो लिया। वो मेरी कही हुई हर बात पर दिलो जान से अमल करने का कायल था, जबकि मैं मुसलसल सोबराज के बारे में सोचे जा रहा था। मैंने चौफान से जो कुछ कहा था वो अपने फैसले की गलती को छुपाने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं था। मैं वक्त गुजारने के लिए चौफान से छेड़छाड़ करता रहा। इस दौरान में मेरे जहन में एक वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब होती जा रही थी। आखिरकार हम एक तनावर दरख्त के करीब खेत से निकलने में कामयाब हो गए। अब यहाँ से हमें वापसी का रास्ता देखना है। चौफान गहरा सांस लेकर बोला, फसल इतनी ऊंची है कि जमीन पर खड़े होकर दूर का जायजा नहीं लिया जा सकता। मैं दरख्त पर चढ़कर जायजा लेता हूँ, रोशनी नजर आ ही जाएगी।
दरख्त पर जरूर चढ़ो मगर रोशनी के साथ खेतों का भी जायजा लो। मैंने उसे हदायत की। जहां भी पौधे या पत्ते हिलते नजर आए उधर गोली ताक दो। ओह मास्टर, तुम वाकई ग्रेट हो, वो खुश होकर बोला। हमें खेतों में घुसने के बजाय इब्तिदा से इस तरकीब पर अमल करना चाहिए था। पगडंडियों के सहारे हम एक से दूसरे दरख्त तक पहुंच सकते हैं। 10-15 दरख्तों से बहुत बड़े इलाके का जायजा लिया जा सकता है। तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी? ऐसी बातें ऑक्सीजन की कमी की सूरत में सूझ सकती हैं। तुम दरख्त पर जा रहे हो या मैं ऊपर चढ़ने में पहल करूं? मैं रोशनी नहीं डालूंगा, खामोशी से देखभाल करके उतर आऊंगा। उसने करीबी दरख्त के तने की तरफ बढ़ते हुए ताई तलब अंदाज में कहा। चाउफान करतबी आदमी था। लम्हा भर के लिए इस घने दरख्त के करीब रुका और फिर उसकी झुकी हुई शाखों में से एक का सहारा लेकर किसी बंदर की फुर्ती से ऊपर चढ़ता चला गया। मैं खामोशी से उसको उतरने का इंतजार करता रहा। चंद मिनट बाद वो मायूस होकर लौट आया। तहद्दे नजर उसे कोई मशकूक जुम्बिश नजर नहीं आई थी। उसने दूसरी खुशखबरी ये सुनाई कि इतनी देर से हम एक ही दायरे में भटकते रहे थे और रेस्ट हाउस से ज्यादा दूर नहीं निकले थे। वक्त की बर्बादी पर दिल ही दिल में काफी अफसोस मलने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर सोबराज मुसलसल हरकत में रहा था तो यकीनन हमारी दस्तरस से दूर निकल चुका था। मुझे शुबा था कि चाउफान के आदमियों की धुआंधार फायरिंग के खौफ से उसने बराह रास्त फरार का खतरा मोल नहीं लिया होगा। कुछ दूर तक खेतों में घुसने के बाद खामोशी से अंदर ही दुबक कर बैठ गया होगा। उसे मालूम था कि इसकी तलाश में आने वाले इसके खून के प्यासे थे और इनका कानून के मकामी रखवालों से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। अंधेरा छटना शुरू होता तो वो भी मैदान में जमे नहीं रह सकते थे। फायरिंग और तलाश का सिलसिला खत्म हो जाता तो सुबह का उजाला फैलने के बाद वो किसी भी तरफ से बाहर निकलकर अपनी जान बचा सकता था। इस वक्त मेरी रिस्ट वॉच 3:30 बजा रही थी। इसका मतलब था कि हमें रेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे से निकलकर खेतों में उतरे हुए आधे घंटे से भी कम वक्त हुआ था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे हम घंटों से इस मुहिम में मसरूफ हों। चाउफान के आदमियों की तरफ से चलाई जाने वाली गोलियों का दरमियानी वक्फा मजीद बढ़ चुका था। किसी भी पुख्ताकार मुजरिम के लिए यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो फायरिंग किसी हदफ पर नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए की जा रही थी। वाज़ेह रद्द-ए-अमल तय हो जाने के बाद हमने पौधों से घिरे हुए तंग और कच्चे रास्तों से दूर दरख्त तक पहुंचने में बहुत तेजी दिखाई। खुले आसमान तले आ जाने के बाद समतों का तयन भी सहल हो गया था। ये के बाद दिगरे हमने 12 दरख्तों पर चढ़कर इनके गिरदो पेश का जायजा ले डाला, लेकिन कामयाबी की कोई किरण नजर नहीं आ सकी। 13वां दरख्त मुझे सर करना था। 3 दरख्तों के बाद चाउफान का जोशो खरोश ठंडा हो गया और हमने बारियां तय कर ली थी। ऊंचे तने वाले दरख्तों पर उसने खुद तबाह आजमाई की थी। मैं पत्तों और शाखों के दरमियान से गुजरते हुए खासी बुलंदी तक पहुंचा तो मुझे एक जानिब खेत के पत्ते जोर जोर से हिलते नजर आए। मैंने करीबी शाख पर अपनी जगह बनाकर इस तरफ नजरें जमा थी। पत्तों वगैरह की वो हरकत आहिस्तगी से आगे हरकत करती हुई नजर आई तो इब्तिदा में मुझे नजर का फरेबी अंदेशा हुआ। चंद लम्हे तक वहीं निगाहें मरकूज रखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इन पौधों के दरमियान से कोई वजनी जानदार गुजरा था। वो किसी शक को शुबे में पड़ने का मौका नहीं था। मैंने दरख्त की शाख पर अपना तवाजुन बेहतर करते हुए राइफल उठाई। मैं इस वक्त ब्रस्ट का गैर मुतवाजन झटका बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने अंदाजे से अपने हदफ की ज़मीनी पोजीशन का तयन करते हुए एक गोली चला दी। फिजा एक बेसाख्ता इंसानी चीख से लर्ज उठी और खेत में जलजला सा आ गया। चीख का कोई लबो लहजा नहीं होता, लेकिन आवाज़ के भारीपन से मुझे यकीन था कि मेरी चलाई हुई गोली ने सोबराज के बदन का कोई हिस्सा चाटा था। वो आवाज़ चाउफान के किसी मकामी साथी की नहीं हो सकती थी। अपने मुकद्दर की इस यावरी पर मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया। बेख्तियार जी चाहा कि दरख्त की इस ऊंची शाख से छलांग लगाकर मैं फिजा में उड़ता हुआ जख्मी सोबराज पर जा पड़ूं, लेकिन दरख्त ऊंचा था, फासला तवील था। ऐसी पुरजोश मुहिम जोई अहमकाना खुदकुशी पर मुंतज हो सकती थी। मैंने अपने हैजान पर काबू पाकर बहुत तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। दरख्त से उतरते हुए मैंने आखिरी लम्हा तक पौधों की जुम्बिश पर निगाह रखने की कोशिश की थी और इस नतीजे पर पहुंचा था कि सोबराज जख्मी होने के बाद अंधाधुंध उस तरफ भागा था जिधर चाउफान के बयान के मुताबिक खेतों का सिलसिला जंगल की इब्तिदा पर खत्म हो जाता था। मास्टर, तुमने कमाल का निशान लगाया है। मेरे नीचे पहुंचते ही चाउफान वालियाना अंदाज में मुझसे बगल की रोका। डान अच्छे निशाना बाजों की बहुत इज्जत करता है, मगर मुझे हैरत है कि गोली चलने पर इस दरख्त से एक परिंदा भी चीखता हुआ नहीं उड़ा। बाजू का चाउफान को ऐसी ही अनोखी बातें सूझती थी। दिल तो ये चाहा कि मैं वक्त की सर्रागनी पर उसे झाड़ूं, मगर उसने मेरे निशाने की तारीफ की थी। मैंने उसका दिल रखने के लिए नरमी से कहा, दरख्तों में बसेरा करने वाले सारे परिंदे तुम्हारे आदमियों की चांद मारी ने पहले ही उड़ा दिए हैं। अब वक्त खराब मत करो वरना जख्मी शिकार निकल जाएगा। मैंने इसका हाथ थामा और दरख्त के साए से खेत की तरफ दौड़ लगा दी। खेत में चंद कदम दूर तक घुसने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वक्ती जोश में आकर मैं गलती का इरादा करने जा रहा था। खेत में घुसकर हम कभी सोबराज तक नहीं पहुंच सकते थे। बाहर निकलो, मैंने उसी लम्हे मुड़ते हुए कहा।
हमें पगडंडियां पकड़कर जंगल की तरफ पहुंचना है। इसका रुख इस समत में था और वो सीधा जाएगा। जख्मकारी है तो वो दरमियान ही में ढेर हो जाएगा, फिर दूसरे लोग उसे जिंदा या मुर्दा हालत में खेतों से बरामद करेंगे। हम भटक कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मैंने उसके साथ एक रास्ते पर तेजी से बढ़ते हुए कहा।